Hello students, welcome in your science class. I am Kapsem is here for making your science easy for you. We are studying our chapter that is metals and non-metals. In this chapter, we have studied what are metals, what are non-metals, what are metalloids. We have seen the occurrence of metals, non-metals and metalloids. We also have seen the uses of metals and non-metals, as well as we have studied the physical properties and chemical properties of metals and non-metals. Today we are going to study the corrosion of metals. What is corrosion? Corrosion is one type of process. What happens in this process? In the process of corrosion, the substance is slowly eaten away. What do you mean by eaten away? Okay, we will see the actual definition. The corrosion is the process by which materials such as metals are slowly eaten away when exposed to air and moisture. अब यहाँ पे जो eaten away दिया गया है, बोला गया है, एक्चुअली से ईट नहीं करता है कोई. दिस ईटन अवे मीन्स लॉस. ये खाते नहीं है इसे, ये लॉस होता है. क्या होता है यहाँ पे? कुछ मेटल्स जो है वो एयर और मॉइस्चर से एक्सपोज होने की वजह से वहां पे कुछ रिएक्शंस होते हैं. हमने केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन और वाटर के साथ मेटल के नॉन मेटल के रिएक्शंस देखे हैं, है ना. और वहां पे हमने देखा है मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो वहां पे दूसरा ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, उनके हीट प्रोड्यूस्ड होती है, ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. यस, तो ये जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शन की वजह से उन मेटल का लॉस होता है और इसी को बोला जाता है करोजन. ये स्पेशली मेटल्स में ही होता है. यस, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा है मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा है वो रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ. और नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, है ना. ये मेटल के बारे में ही करोजन होता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं आयन जब एयर के वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे एक ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाता है आयन के सरफेस पे, जिसे बोला जाता है रस्टिंग. यह है आयन की रस्टिंग. वैसे ही कॉपर भी जब एयर और वाटर से कांटेक्ट आता है कॉपर का, तो वहां पे ग्रीनिश सब्सटेंस फॉर्म होता है. यह है कॉपर की रस्टिंग. Corrosion is troublesome and wasteful. However, sometimes corrosion is useful. For example, in aluminium, a newly cut piece of aluminium corrodes to form a layer of aluminium oxide on its surface. You can see here the newly aluminium pot is cut, and due to the contact with air, the aluminium oxide is formed and the layer become thicker. Hence, this thick layer protect the aluminium from further corrosion. We will look this corrosion one by one. We will see about iron. What happens in iron? Rust is formed. When iron comes in contact with air or moisture or acid,
it forms a red brown layer that is called rust. It means the rust of iron is nothing but it is iron oxide. It is iron oxide. This indicates that the rust is nothing but it is an oxide of a metal. What is rust? Rust is an oxide of a metal. Then we will see about copper. Copper gets corroded in the presence of moist air. It first tarnishes, then gradually changes to the dark brown or black and finally to green. The green coating is a mixture of copper compound, that is copper carbonate, and copper hydroxide, and it is basic in nature. That's why when we rub such copper pots with tamarind or lime, they get polished because lime is acidic in nature or tamarind is acidic in nature. So it removes the basic layer that is collected on the surface of copper pot. जब कॉपर पॉट पे ये ग्रीनिश और ब्राउन लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए हम टैमरिन मीन्स इमली या फिर लेमन यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर का लेयर बना है ब्राउन और ग्रीन कलर का जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट है, वो बेसिक नेचर है और ये एसिड के एक्शन की वजह से वो बेसिक लेयर न्यूट्रलाइज हो जाता है और जो कॉपर का पॉट है वो फिर से शाइन करने लगता है. Then we will see about silver. Silver does not get easily corroded in unpolluted air. However, if the air is polluted with sulfur compound such as hydrogen sulfide, silver react with it to form a black coating. And this black coating is nothing but silver sulfide. In your book, the chemical reaction is given for it. The symbol of silver is Ag. And you have to write that chemical reaction with their name in your notebook. On exposure to air, the aluminum react with oxygen to form a protective coating of aluminum oxide, and that prevent further corrosion of aluminum. जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिससे फर्दर करोजन प्रिवेंट होता है. एल्यूमिनियम पॉट का और करोजन ना हो ये इसी की वजह से होता है और इसीलिए एल्यूमिनियम के पॉट जो है वो खराब नहीं होते हैं क्योंकि उनका करोजन अपने आप प्रिवेंट हो जाता है नेचुरली. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर वहां पे फॉर्म हो जाता है, वो एज अ बैरियर वहां पे एक्ट करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन को. Some metals such as gold and platinum do not corrode in air, and that is why these metals, gold and platinum, are used for making ornaments. These ornaments do not lose their shine even after several years. वो अपनी शाइन नहीं खोते, इसीलिए गोल्ड और प्लैटिनम को ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज में लाया जाता है. Yes? Then
we will see how to prevent this corrosion. How to prevent corrosion? For this, several methods are used, such as painting or applying oil or covering with another metal or electroplanting. We will see it one by one. The first method for preventing the corrosion of iron or other metals. The first method is painting or applying oil or grease or varnishing it. Painting the surface of the metal after cleaning it thoroughly is the most common method of preventing corrosion. The paint keeps air away from the metal surface. Applying grease or oil on the surface has a similar effect. However, if there is a break in the layer of paint, grease or oil, the metal starts corroding at that point. Several metals में ये पेंट अप्लाई करने की मेथड यूज की जाती है, स्पेशली आयरन में. आयरन के जो थिंग्स है उन्हें पेंट किया जाता है या फिर उसे ग्रीस या ऑयल लगाया जाता है जिससे कि उसका करोजन ना हो. क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीस या ऑयल या फिर पेंट का बेस है वो आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आने देता है ईयर के साथ और इससे उसका करोजन प्रिवेंट हो जाता है. However, अगर ये पेंट कहीं पे क्रैक होता है या फिर कहीं किसी पार्ट का ग्रीस या ऑयल निकल जाता है तो वहां पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. इसलिए दूसरी एक मेथड यूज की जाती है. व्हाट इज दैट मेथड? वी विल सी. द नेक्स्ट मेथड इज कवरिंग विथ अनदर मेटल. Depositing a layer of another metal which is more resistant to corrosion is another commonly used method for the prevention of corrosion of metals. यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक का लेयर दिया गया है आयरन के ऊपर. आयरन रॉड को डीप किया गया जिंक सॉल्यूशन में और उसका कोट चढ़ाया गया आयरन के ऊपर जिससे कि उसका करोजन ना हो. यस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजेशन. इसे ही क्या बोला जाता है? गैल्वनाइजेशन. व्हाट इज गैल्वनाइजेशन? क्लीन आयरन शीट आर डिप्ड इन द मोल्टन जिंक टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक ऑन इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज galvanization. You have to note it in your notebook. ये जो galvanization की डेफिनेशन है ये आपको नोट करनी है और लर्न करनी है. और ये डिफरेंट फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में मशीनरी जो होते हैं वो आयरन के होते हैं और रस्टिंग की वजह से वहाँ पे काम रुक जाता है. तो ऐसे बिग मशीनरीज में ये गैल्वनाइजेशन होता है. The GI water pipes available in the market are made of galvanized iron. Galvanized iron does not rust even if there is a scratch on the zinc layer. जो पेंटिंग में हमने देखा था ड्रॉबैक, अगर पेंटिंग में क्रैक आ गया या फिर कहीं का ऑयल या ग्रीस निकल गया तो फिर से रस्टिंग स्टार्ट होती है. ये इस मेथड में नहीं होता है. जिंक लेयर के ऊपर स्क्रैच भी आ गए तो भी यहाँ पे आयरन की रस्टिंग नहीं होती है. और रस्टिंग ये गैल्वनाइजेशन के लिए जिंक का यूज होता है. वैसे कवरिंग अदर मेटल्स ये मेथड है अपनी. तो यहाँ पे जिंक के साथ साथ टिन भी यूज किया जाता है फॉर कवरिंग द
another metal. कॉपर में ये टीन का यूज किया जाता है जिसे कॉपर का करोजन ना हो. And this process is called as electroplating. ये गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये दोनों भी किस मेथड में आता है? कवरिंग विथ अनादर मेटल. कवरिंग विथ अनादर मेटल में 2 प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं. एक तो है गैल्वेनाइजेशन जहां पे जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है आयन थिंग पे, आयन इंस्ट्रूमेंट पे. और सेकंड जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें टिन का लेयर चढ़ाया जाता है स्पेशली कॉपर पे. व्हाट इज दिस प्रोसेस? वी विल सी. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग is also used to deposit a metallic layer to prevent corrosion. Tin is electroplated on iron to make food containers commonly called as tin cans. जो फूड के कंटेनर्स होते हैं होटल्स में यूज किए जाते हैं. तो बड़े बड़े कंटेनर्स आयरन के या फिर छोटे सर्व करने के कंटेनर्स कॉपर के होते हैं. तो इनकी रस्टिंग ना हो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टीन की. However, if the tin layer gets scratched, the iron start rusting at that place. The tin can is then no longer suitable for storing food. और इसमें भी जैसे पेंटिंग का ड्रॉबैक है वैसे ही इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ड्रॉबैक है. जहाँ पे इसमें स्क्रैच हो जाता है, कट हो जाता है, तो फिर से उसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और हम उस पॉट को, उस कंटेनर को यूज नहीं कर सकते हैं. क्रोमियम इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील फर्नीचर एंड bicycle handles to prevent rusting. In addition, the chromium layer also gives steel an attractive shine. टीन के साथ साथ और एक मेटल यूज होता है, कौन सा? क्रोमियम. इससे इलेक्ट्रोप्लेटेड किए जाते हैं स्टील फर्नीचर को या फिर बाइसिकल के हैंडल्स को, या फिर जो ग्रिल्स अभी लगाए जाते हैं नए हाउसेस में, ग्रिल्स लगाए जाते हैं स्पेशली स्टेयर्स को, तो वो ग्रिल्स को कोटिंग होती है इसकी क्रोमियम की, जिससे उस स्टील को एक अलग शाइन आती है जो उसे अट्रैक्टिव बनाती है. यस, दीज आर द मेथड्स ऑफ कवरिंग विथ अनदर मेटल. Which 2 process occur in this method? Galvanization and electroplating. Then the third preventing method for corrosion is anodizing. Anodizing of aluminium. A layer of aluminium oxide is formed on aluminium upon exposure to air. This prevents further corrosion of aluminium. If this layer is made more uniform, it protects the aluminium underneath more effectively. This is done by the process called anodization. This process is called as anodizing, or it is also called as electroplating. Why? Because it consists of passing an electric current through sulfuric acid using aluminium as anode. Aluminium as anode यहाँ पे यूज होता है, इसलिए इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोला जाता है. या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसलिए इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोला जाता है. Oxygen is evolved at the anode, which react with aluminium to form a uniform protective layer of aluminium
ऑक्साइड। यहाँ पे जो एनोड है, ये एनोड, दिस एनोड, इस एनोड पे यहाँ पे ये एल्यूमिनियम के यूनिफॉर्म लेयर यहाँ पे बन जाता है। यस, एल्यूमिनियम का डिपोजिशन होता है। और इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, यहाँ पे भी इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। हम यूज करते हैं, देखो 1 ग्राम ज्वेलरी, क्या होता है इस ज्वेलरी में, 1 ग्राम क्यों बोला जाता है उसे, ये जो गोल्ड का लेयर होता है, ये गोल्ड का लेयर दूसरे मेटल पे दिया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया AU इज द फॉर्मूला फॉर गोल्ड। गोल्ड के रॉड से निकलते हैं बबल्स और वो दूसरे मेटल के ऊपर फॉर्म हो जाता है, जिससे वो ज्वेलरी बनाई जाती है। तो पूरा गोल्ड नहीं है, सिर्फ गोल्ड का ऊपर का लेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऐसे वो लेयर तैयार हो जाता है। और ऐसे ही सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी भी तैयार की जाती है। और यहाँ पे आयरन या स्टील के रॉड को भी ऐसे निकेल या क्रोमियम की पॉलिश की जाती है। Then the next method is alloying. Some metal become corrosion resistant when alloyed with other metals. For example, stainless steel. क्या बोला जाता है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस मीन्स करोजनलेस। यस, करोजनलेस स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील, विच इज एन अलॉय ऑफ आयरन। मालूम है, स्टील बनता है आयरन से, और कौन से मेथड से बनता है ये? अलॉइंग मेथड से। यस, स्टेनलेस स्टील विच इज एन अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकेल डज नॉट रस्ट इजीली, वो इजीली रस्ट नहीं होता है। व्हाट इज अलॉय? An alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or 1 or more metals and a non-metal. And this non-metal, usually which non-metal is used in alloy? Usually carbon is used in alloy. Alloy is used to alter the properties of metals to suit certain applications. An alloy is usually made by mixing together metals in their molten form. Here I will show you the process. In this alloy, homogeneous mixture of 2 or more metals or non-metal is used to make a suitable application. Brass is made in this process by using copper and tin. Then we will see they are also sometimes made by mixing metal in powder together. यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कार्बन का पाउडर लिया गया है, क्रोमियम, आयरन और निकेल लिया गया है, जिसे अलॉइंग मेथड से उसका बनाया गया है स्टेनलेस स्टील। Yes, alloying can be used to increase hardness of metal. Alloying method से metal का hardness बढ़ जाता है. Pure aluminium, iron and copper are too soft for construction. However, alloying them with a small amount of other metals or non-metals considerably increases their हार्डनेस। प्योर फॉर्म में ये जो मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं थोड़े से, जिससे कि उससे न्यू थिंग्स मेक करना थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। इसे अलॉइंग मेथड से इसमें हार्डनेस लाया जाता है और उससे डिफरेंट थिंग्स मेक किए जाते हैं। निकेल इज अलॉयड विथ क्रोमियम एंड मोलिब्डेनियम to make alloy that are so hard
and heat resistant that they can be used to make the parts of jet engines that jet heated up to extreme temperatures. जेट इंजन जो होता है, जो जिसे हम रॉकेट्स बोलते हैं या फिर स्पेसशिप्स, इसमें जो इंजन होता है वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा वो निकेल से बनाया गया होता है, अलॉयड निकेल से। क्यों? यहाँ पे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस की जाती है, उसके प्रेशर के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पे वो हीट रेजिस्टेंस हो, इसलिए ये अलॉयड निकेल यूज किया जाता है। देन alloying is used to make metals more resistant to attack by chemicals and atmospheric corrosion. alloying से क्या होता है, वो मेटल्स जो है वो केमिकल से रेजिस्ट करता है, केमिकल्स के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती है, और एटमॉस्फेरिक करोजन से भी वो प्रिवेंट होता है। क्रोमियम इज alloyed with iron to produce stainless steel which does not rust. It is also used in lining containers used in the chemical industry to hold corrosive liquids. स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है क्रोमियम के यूज से। यहाँ पे हमने देखा है क्रोमियम भी यूज किया गया है स्टेनलेस स्टील के मेकिंग में, निकेल भी यूज हुआ है। यस, तो ये कंटेनर्स मेकिंग में यूज में लाए जाते हैं। केमिकल कंटेनर्स जो है वो स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं। alloys of platinum are very corrosion resistance। और प्लैटिनम के जो एलॉय है वो बहुत ही करोजन से रेजिस्टेंस है, वो उनका करोजन बिल्कुल भी नहीं होता है। Then third use of this alloying is also used to change the properties of metal in other way. For example, solder, an alloy of lead and tin, has a melting point which is much lower than that of lead or tin. This make solder useful for joining copper. Useful for joining copper wires in electric circuits. Superplastics, an alloy of aluminium, can be stretched several times more than any metal or alloy. Some common alloy, their composition and properties are, I am giving these properties and composition of some alloy in a chart. You have to note that chart in your notebook and read and learn it. ये है बेनिफिट्स एलॉय के। एलॉय जो है वो मेटल के प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए भी यूज में लाया जाता है। जैसे लीड एंड टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और लो बनाया जाता है एलॉय मेथड से, जिससे कि उसे कॉपर वायर जॉइन करने के लिए यूज में लाया जाता है। यस, आई एम गिविंग यू द alloys with their composition, properties and uses in a tabular form. You have to note that table in your notebook.